أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, I hope so you are fine. I'm also fine, alhamdulillah. So let me start my today's session by sharing my screen. Basically, today we will do two types of things. Let me announce to you guys whatever we're gonna do in today's class before starting. Well, first of the thing is whatever we have learned in previous session, we will discuss about it and I will ask you questions to see whoever knows all of the previous things. And the second thing is we will learn about Prophet Hazrat Adam alayhi salam coming on earth, and then the mankind is spreading on all of the parts of the world. So let me start my session. I hope so you can see the screen. So first of all, I am gonna ask you the previous topics question, and let's see whoever gives me the answer. So now my first question is, who is Hazrat Adam alayhi salam? And nobody else knows about it. Raise your hand. Everybody. So that I can answer. First you, then you. Hazrat Adam is the first man of this world. And we have a prophet special thing about him. Special thing about him. He's not alone. Yes. Okay. Now you. Hazrat Adam is a first man in the world. Yes. The special thing about him. There are two more special things. I will ask those who raise their hand. You know? You can tell me, you know or not? Okay. Any other? Previous first I will ask them so that there is no need to do the reinforcement, then I will know on the next topic. Otherwise, it would be not proper. Any other? You want to answer? Okay, so nobody wanna, yes? Special thing about him. Okay, let me tell you, there were two special things about him. One was that, he had all the knowledge over, the mankind, whatever they are gonna do in their future, such as he knew about we are gonna make big buildings and other type of things. And he also knew more over other things as well. And second special thing about him is that he had left his footprint on the mountain where he landed from the Jannah. So now these are the two special things, and we cleared our point of who is Adam and what is special about him. Okay, let's go on the topic where he is created, and then tell me an event where Shaitan, denies to Allah on his order. Which type of order was that, and why did Shaitan deny that order, and other things. Can anybody tell me about the angels being ordered by Allah and also Shaitan, but Shaitan then denies and then he is kicked out of Allah's throne. Why did this event happen? Yes. Yes, yeah. It's okay. Yes. शैतान इसके लिए माना था कि अल्लाह ताला ने उसको बोला कि हज़रत आदम को सजदा करो. Yes. And then बोला कि नहीं मैं ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बनाऊं. मतलब the same point of arrogance, right? So now these are the things. These were the events. Same point of arrogance. Explain what? Explain. They didn't understand the same point of arrogance. The arrogance, you can say
था ये कि उसके अंदर ना बहुत ज्यादा तकब्बुर था कि मैं तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ उनसे, मुझे तो ज्यादा इल्म है। एंजल्स भी मतलब अल्लाह ताला से जो उन्होंने शिकवा किया था ना, इट वाज आल्सो ऑन द सेम पॉइंट कि हम लोगों को तो जो आप बना रहे हैं उस चीज से ज्यादा हमें नॉलेज होगी, और अल्लाह ताला ने इस चीज को रॉन्ग किया बिकॉज हजरत आदम अलैहिस्सलाम न्यू सो मेनी थिंग्स। एंड ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से शैतान वाज वेरी एरोगेंट एंड ही वाज वेरी 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 एंग्री कि मुझे ये नॉलेज क्यों नहीं आती थी, या फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको क्यों बना लिया, फिर मुझे क्यों हुक्म दिया कि मैं सजदा करूं। These were the things as well which made him to come in the denial of the order, and then he was kicked out of the throne. Did you understand? Hmm. So let's go on further. So now who will tell me about that event where he went, Hazrat Adam alayhi salam went in Jannah, and then what happened? How did he come on earth? Yes. अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मना किया था एक पेड़ पे जाने का, क्योंकि वो शैतान का पेड़ था। उन्होंने उसमें से फल खा लिया, तो अल्लाह ताला से ना उन्होंने ना दुनिया बनाई और हजरत आदम को दुनिया में छोड़ दिया। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। जिस जिसको भी इंग्लिश आती है ना वो इंग्लिश में ही बात करेगा, थोड़ा उर्दू में बात कर सकता है, और जिस जिसको नहीं आती वो फिर बात कर सकता है उर्दू में। देन आई विल एक्सप्लेन टू एवरीबॉडी अबाउट इट। ओके, गुड पॉइंट। और दूसरा ये, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में क्यों भेजा गया था? और फिर लोग ये क्यों समझते हैं कि एक पनिशमेंट उनके ऊपर नाजिल हुई थी, और ये हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से भी कनेक्ट करते हैं वो, और ये क्यों वो कहते हैं कि इस पनिशमेंट की वजह से फिर वो दुनिया में आ गए थे? तो कैन एनीबॉडी आंसर मी अबाउट इट? जी जी, एज यू नो देयर वाज अ टेस्ट एंड ट्रायल। टेस्ट और ट्रायल के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है, एंड दिस वाज द टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ बोथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम एंड हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। और जो ये लोग बात करते हैं इसके बारे में कोई बता सकता है कि ये क्यों कहते हैं कि एक पनिशमेंट के तहत ये सब कुछ हुआ था, कि अर्थ में वो आ गए थे और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उकसाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम? कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट दिस पॉइंट? नोबडी? यू? ओके, सो मैं आप लोगों को ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। था ये कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको बहकाया था। बस ये समझना आप कि शैतान ने उन दोनों को बहकाया था, उन दोनों को बताओ क्या कहा था, ऐसी ऐसी बातें की थी कि अल्लाह ताला इसलिए नहीं चाहते कि आप उस पेड़ के पास जाकर उसका फल खाएं, क्योंकि आप ना उससे एंजल टाइप कुछ बन जाएंगे, आपके पास और ज्यादा ताकत हो जाएगी। ऐसी बातों पर उन दोनों को उकसा कर उसने फिर ये उनसे काम करवाया था। फिर ये पनिशमेंट नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ये सब कुछ पहले से जानते थे, और अल्लाह ताला चाहते थे कि ऐसा ही हो। इसलिए ये जो जन्नत है ना, ये जन्नत उन्होंने सिर्फ टेस्ट और ट्रायल्स के लिए ही बनाई उनके। ये असली जन्नत नहीं है, ये वाली जन्नत नहीं है जो हम समझते हैं जन्नत फिरदौस, वो दूसरी है। वो लोग जब अपने टेस्ट और ट्रायल खत्म कर लेंगे ना डे ऑफ जजमेंट, तो जब वो पास हो जाएंगे तो वो फिर उसमें जाएंगे। ये एज अ टेस्ट और ट्रायल के लिए जन्नत बनाई थी, जिधर अल्लाह ताला पहले से ही जानते थे कि इंसान को उन्होंने अर्थ में उतारना है। अब किसी भी वजह से, किसी भी एक तहत, तो ये वजह जो है एक दरख्त का मतलब फल खाना बन गया, तो फिर उनको नीचे उतार दिया गया। बट दैट वाजंट अ पनिशमेंट। ओके, यस। जन्नत बड़ी रहेगी उससे, अर्थ से बड़ी रहेगी। इट वुड बी वेरी 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 बिग, और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों से भरी हुई होगी। अच्छा, आप वहाँ पे हर किस्म के, हर कलर के जो आपने नहीं देखा ना, ऐसे बहुत सारे कलर हैं, पिंक, पर्पल, रेड, ब्राउन, ग्रीन, इनमें से कुछ कलर ऐसे भी हैं जिनके फल होते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कलर भी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वो वाले कलर भी और वो वाले कलर भी, जो इस दुनिया में ऐसे कोई फल मौजूद नहीं है, उसके भी बहुत मजेदार से वहाँ पे फल होंगे, वहाँ पे हर तरीके की चीज होगी। जी, मैं कह रहा था कि जो सबसे निचला खाना होगा ना जन्नत का, वो भी 7 जमीनों के बराबर होगा। हमें जन्नत में भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, और जन्नत में हम लोग अपनी मर्जी की चीज जो भी विश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट्रीज खाना, या फिर मतलब शेर मांगना। हाँ जी, सब अपनी की विश बता सकते हैं। हाँ और क्या विश नहीं, वहाँ पे छोड़ने की जाती थी। हम जितना सिखाया लेकिन
कितना मर्जी टाइम आ There are some please don't talk and there would be like this के 17,000 टाइप ये याद नहीं है मुझे, लेकिन ये मैंने ना जन्नत सीरीज देखी है तो उसमें ये बताते हैं कि ना 70,000 लोग है ना वो एक वेल का हार्ट होती है ना वो खाएंगे। वेल की हार्ट, वेल फिश, वो हराम नहीं हो वहां पे ना, वो वाइन होती है ना शराब, वहाँ की शराब भी बहुत पाक और अच्छी होती, यहाँ की शराब दूसरी है। वो मशरूम अच्छा। होगा, हाँ जी वो अरबिक में मशरूम को शराब कहते हैं, ठीक है। ये वो वाली शराब भी है जो यहाँ पे दुनिया में हराम है, ठीक है। और जो होती है ना शराब बनती है वाइन, उसको ना पाँव से पीसते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं। हाँ हाँ वो मुझे पता है, वो इजिप्शियन से शुरू हुआ है। वो गंदी चीज है दुनिया में। मेरे ख्याल से वो इजिप्शियन से शुरू हुआ है क्योंकि मैंने बुक में भी पढ़ा था। ओके, वी शुड हैव टू स्टिक विद द टॉपिक। यस, सो यही था कि इनको जन्नत से फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अर्थ पे भेज दिया था और अब हम लोग अर्थ की ही कहानी की तरफ जाते हैं। अर्थ के अंदर इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या क्या टेस्ट और ट्रायल जाए और कैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने मतलब इनको आजमाया और शैतान ने कैसे इंसानों को बहकाया और कैसे दो ऐसी कौमें बनी, दो ऐसी रेसेस बनी, एक जो अनजस्टिस की गलत काम करना, डांस करना, मतलब ये सारी चीजें गलत ही में आती हैं, और एक ऐसी कौम थी जो कि बिल्कुल अच्छे अच्छे लोगों से भरी हुई थी, जो पाकीज़ा लोग थे, जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। तो ये दोनों रेसेस कैसे बनी और ये हम जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम के वो दो बेटे आपस में क्यों लड़े और कैसे लड़े और बाकी और चीजें। तो आज की हमारी जो स्लाइड है ना, जो एक्टिव स्लाइड है वो ये है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग पहले यहाँ से शुरू होते हैं, एक मिनट। This would be our first point, and second would be our this point, third would be this point, fourth would be this point, fifth would be this point, sixth and both equal, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग ना ये देख लेते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए थे, दिस इज अर्थ ना, वी कॉल दिस अर्थ। तो ही वाज सेंट ऑन अर्थ। और आप लोगों को तो पता ही है कि शैतान ने जब वो उसको किक आउट किया गया था थ्रोन से अल्लाह ताला के, तो उसने ये अहद किया था अपने आप से कि वो जब तक ये सब कुछ उनको बहकाएगा, इंसानों को जब तक बहकाएगा, जब तक जो है डे ऑफ जजमेंट नहीं आ जाता। ओके, और ही वाज सेंट ऑन अर्थ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इनसे फिर और बाकी सारी चीजें हुई। पहले तो इन लोगों ने घर बनाया आके अपना, मतलब इस तरीके का सेम टू सेम घर नहीं होगा लेकिन अलग तरीके का भी हो सकता है। ओके, अब ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं, ना इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना घर बनाया और फिर उनके ना है क्योंकि वहाँ वो जन्नत की तरह नहीं है ना अर्थ, अगर वो तो पता है यहाँ पे खुद मेहनत करनी पड़ती है, ना तो यहाँ आपको फ्री का खाना मिलता है, ना यहाँ आपको फ्री की कोई चीज मिलती है, घर भी नहीं मिलता है। तो यही चीज थी शुरू में भी कि हार्ड हो जाता, घर ढूंढना पड़ती, घर बनाना पड़ता था और फ्रूट्स अलग अलग जगहों पे ढूंढना पड़ते थे। अब आप ये देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे ना इन्होंने ट्रैवल किया, जैसे अफ्रीका से एशिया वगैरह वगैरह, वो आगे जा हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो अब जब वो उनको भेज दिया गया था ना, और जब उन्होंने अपना घर भी बना लिया था, जब वो सेटल हो गए थे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ, तो अब क्या हुआ था कि शी गेव बर्थ टू टू ब्रदर्स, यू कैन से, जिनको हम लोग आज कहते हैं हाबिल और काबिल। इज इट इन्होंने ये कहते हैं ना हम लोग। तो इससे मुतालिक ये है, ये मतलब मेरी मम्मा ने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की थी और मुझे अपनी मम्मा से ये चीज पता चली थी कि हाबिल और काबिल जो ज्यूइश रिवायात नहीं होती इनकी अपनी, तो उन्होंने ये नाम डिसाइड किया था इन दोनों लोगों के लिए, कुरान में भी किया था उनकी रिवायात में मौजूद था।
और आप लोगों को Evidence पता है वो, है। हाँ जी, उसका एविडेंस। तो यानी उन लोगों का कुरान में भी मेंशन नहीं है ना, बस वो 2 लोग थे जिनमें से एक बंदे का सबसे पहला दुनिया में मर्डर हुआ। दोनों भाई थे। यस, दोनों ही भाई थे। लेकिन उनमें से दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही अलग थे। एक वाइस था और दूसरा बहुत ऐसी, हर चीज पे एंग्री। सो उन दोनों में ना किसी भी वजह से लड़ाई हो गई। ज्यादातर लोग आज ये भी कहते हैं कि उन दोनों की ना शादी होनी थी, और जो है उनमें से जो ये जो एंग्री वाला बंदा था, ये जो है एक जो है ना वी कैन से एक गलत, मतलब अजीब सी दिखने वाली आंटी से मैरी करने वाला था, और ये नहीं ये भी रिवायात, ये रिवायात ये भाई ने इस्लामिक कोई तो थे, मगर वो ये बात मशहूर है कि ये मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये चीज लोग अभी भी समझते हैं। ये बात मशहूर है कि उस वक्त जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होती थी ना, तो बहन भाई यानी जुड़वा होते थे बच्चे। आप बात कंटिन्यू करें। और वो जो एक लड़का होता था और एक लड़की, ठीक है, वो दोनों भाई होते थे और बहन भाई होते थे। और जो शाम में जो पैदा होते थे वो भी बहन भाई होते थे, सुबह वाले भाई की शाम वाली बहन से शादी होती थी, ठीक है। लेकिन इन लोगों का आपस में जो है वो जो क्या हुआ, एक मिनट ब्रदर एंड सिस्टर, एक मिनट। Yes, so we were here where I was discussing कि ये जो है ना, आप मामा आप अपना पहले पॉइंट कंटिन्यू करें, फिर मैं लोगों को समझा रही हूँ। बेसिकली ये जो वाक्य हमने सुना है कि इसराइलाइट्स की जो रिवायात है, इसराइली रिवायात के अंदर आता है कि हाबील नाम था, मगर ये इसका कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस नहीं है हमारे पास। और इसी तरह ये भी मशहूर है रिवायात के थ्रू कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे एक साथ होते थे, एक लड़का और एक लड़की, और फिर दूसरे टाइम पे जो एक लड़का और लड़की पैदा होते थे वो दोनों बहन भाई होते थे, और एक टाइम वाले भाई की दूसरे टाइम वाली बहन से शादी होती थी। मगर जो दोनों भाइयों के दरमियान क्लैश था वो ये था कि जो एक साथ बहन भाई पैदा हुए थे वो अपनी साथ पैदा होने वाली लड़की को ही पसंद करता था, वो जो दूसरा भाई था। तो इस वजह से कहा जाता है कि शैतान ने उसके कान में वसवसा डाला, और उसने जो है वो अल्लाह ताला से इस तरीके से होता था, इस तरीके से बात कि वो जो जी बोलिए। वो जो मॉर्निंग वाले थे ट्विंस जो थे ना, ट्विंस, एक सिस्टर और एक ब्रदर, वो पैदा होते थे, और इवनिंग में ट्विंस पैदा होते थे, सिस्टर और ब्रदर। तो जो इवनिंग वाले होते थे ना, उनमें से जो आंटी होती थी, उनको जो सुबह वाले वो होते थे ब्रदर होते थे, उनसे शादी करनी होती थी। मतलब इस तरीके से इसराइली रिवायात में आता है, लेकिन उसका भी कोई एविडेंस नहीं है, ना इसके बारे में कोई हदीस है, ना इसके बारे में कुरान में भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम ये इसको नहीं कह सकते कुछ भी, ये हमारे लिए इट्स नॉट अ मैटर। बस ये था कि जो है ना, इन दोनों, ये जो दोनों भाई थे ना, इन दोनों में ये फर्क थे। ये गुस्से वाला था काबिल, और हाबिल बहुत वारिस था, और किसी वजह से इन दोनों में जो बहुत अच्छा इंसान होता है, जो कोशिश करता है कि वो लड़ाई ना करे हमसे, तो उन दोनों में किसी वजह से लड़ाई हो गई थी। भाभी ने तो सिर्फ मतलब अल्लाह ताला से जुमला कहा था कि मैं अल्लाह ताला से लड़ता हूँ। इसकी वजह से काबिल बहुत गुस्से में हो गया था कि उसने सोचा कि वहां पर एक पत्थर को उठा लूं और उसके सर पे मार दूं। So he did like this, and then there was the first murder of a person, और उसके बाद उसको फिर एज अ क्रो, उसने क्रो को देखा था, 2 क्रोज लड़ रहे थे, एक मर गया था, तो वो बेरी कर रहा था दूसरा क्रो जो विक्टोरियन था। तो उसने भी यही सोचा कि ना सैंड खोदता हूँ और फिर उसका नर डाल देता हूँ। तो दिस वाज द सिस्टम कि अब भी यही किया जाता है कि बेरियल सिस्टम जो भी होता है। पहले तो कुछ जगहों पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे जाने के बाद बहुत सारी रेसेस पैदा हो गई थी, हिंदू, बेबीलोनियन, मेसोपोटामियन, पता नहीं कौन कौन सी सिविलाइजेशन। तो उनमें अलग अलग चीजें भी होती थी, जैसे कुछ वल्चर्स को खिला देते थे, कुछ जला देते थे जिंदा, कुछ और काम भी कर सकते थे, पर करते थे मतलब। अभी शुरू करेंगे। हाँ, अभी यही होता है वैसे।
तो था ये कि फिर काबिल को मेरा ख्याल है कोई ये भी रिवायात है क्या कि उसको कोई सलाह दे दी गई थी। काबिल हाँ जी, क्योंकि उसी ने मर्डर किया था ना। नहीं ना, तो मतलब ये आ ज्यादातर जो मैंने रिसर्च किया उसके मुताबिक ये है कि काबिल बहुत डर गया था उस वक्त, और उसके बाद ना वो उसने सोचा कि अब वो वापस घर ना आ जाए, और वो जो है ना पहाड़ों की तरफ निकल गया था, और मतलब उसको भी तो उसने भी मतलब फिर बाद में किसी से शादी कर ली थी, और फिर उसकी रेस में से जो लोग पैदा हुए थे वो जो है ना इंसाफ को कायम करने वाले नहीं थे, वो गंदी रेस थी, वो इविल रेस थी। और जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, जो और आए थे ना प्रॉफिट्स, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, यानी जस्टिस की कौम में से। और यही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से फिर अलग अलग बहुत सारे लोग बने हैं। फिर ये मतलब फाइटिंग वाला भी हो गया, मर्डर करने वाला के लोग फिर कत्ल भी किया करते थे एक दूसरे का, ऐसा वक्त भी आया। दोबारा घर गए थे, ये तो मैंने भी सुना था कि वो दोबारा घर गए थे, बल्कि मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना था कि उनको ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिनट अभी नहीं शो हो रहे, ये आपको नजर आ रहे हैं पर अगर आने हो तो यहाँ तक मैंने ये भी सुना था कर दें, वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खत्म हो गए। तो मैंने यहाँ तक ये भी सुना था कि ये बता रहे थे, जो भी मैंने सुना था जिधर से भी, कि काबिल है ना उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पनिशमेंट की वजह से जो उनके बाबा है ना उसको जमीन में एज अ स्टोन बना दिया था, और वो फिर मेरा ख्याल है वही रहेगा ये ना हाँ ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मैं भी बोलूँ। यहाँ पे बहुत सारी और बातें आती हैं, लेकिन जहाँ तक ये इसकी बात है ना कि काबिल भाग गए थे, ये ज्यादा रेफरेंस तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही सोची जाती है बात कि फिर बाद में इसी फॉर्म की वजह से गलत लोग पैदा हुए थे, और उन्होंने फिर म्यूजिक भी इंट्रोड्यूस किया था इन द सेंस ऑफ के उन्होंने बाजे वगैरह और इस तरीके की चीजें बनाई थी। वो फिर आगे जाके हम लोग शीशे ने सलाम की जब कहानी पढ़ेंगे ना इस सेशन में तब डिस्कस करेंगे। यही है कि उन दोनों में ये फर्क था कि जो अच्छी कौम थी ना वो हमेशा पीस रखती थी और जस्टिस रखती थी, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका मतलब वही जैसा हमारा नबी के दौर का हाथ काट देना, उनकी भी कोई होती होगी, उनकी भी जाहिर है जस्टिस तो था ना। और ये सारी चीजें थी, वहाँ पे इविल नहीं था, वहाँ पे लोग पाकीज़ा थे। और जो दूसरी लाइन थी ना द इविल लाइन, द लाइन ऑफ इनजस्टिस, वहाँ पे शैतान सबको बहकाया करता, वहाँ पे लोग कत्ल करते एक दूसरे को, वहाँ पे शैतान वेरी मच ताकतवर वहाँ पे था, क्योंकि उसी की बात सुनी जाती थी, उसी की वजह से ताबूत वगैरह भी मेरा कहना वहीं से ही शुरू हुए थे, उसी नस्ल से। फिर वो आगे जाके बेबीलोनियंस में भी आए थे, सुमेरियन में भी आए थे, इस तरीके से सारा कुछ हुआ। तो आज भी यही है कि इविल में और गुड में एक थिन लाइन होती है। जो भी इविल गुड से इविल काम में आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अपने मामा की बात नहीं मानना, झूठ बोलना, या फिर बड़े बड़े काम कत्ल करना, हो गया ना वो भी एक अच्छे इंसान को मारना, किसके बेकाबे में, शैतान के बेकाबे में, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गंदे गंदे अल्फाज बोलना। सो ये चीज इसकी वजह से ना हम इस थिन लाइन को पार कर जाते हैं। ये इतनी थिन है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम किधर हैं, हम गुड से इविल में आ चुके होते हैं। और फिर हमें जैसे शैतान उन लोगों को बहकाता है जो इविल में पहले से होते हैं, हमें भी उसी तरीके से शैतान, फिर हमें नहीं पता होता, वो हमें बहकाता है। फिर हम जो लैडर्स होती है ना, ये सीढ़ी है फॉर एग्जाम्पल, इसको आप ऊपर इसके जाते जाते इतना हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है कि हम लोग बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। हाँ वहाँ ऐसा भी अगर अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा हो सकता है कि हम वापस हिदायत में आ जाए, लेकिन अगर ना चाहे अल्लाह तो वो फिर हम वहीं रहते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर चले जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला हिदायत उसी को देते हैं जो हिदायत की तलाश में। हाँ जी, और जिसके दिल में जो है हिदायत का जरा सा भी जर्रा होता है, जो हिदायत के बारे में सोच रहा और है। शैतान भी जो है ना उसके पास नहीं आता जिसका ईवल का डोर इसने ओपन रख दिया। आप वो जब समझने ओपन करता है फिर आता है शैतान। जहाँ तक मेरी रिसर्च की बात है वो इस तरीके से भी है कि अगर इंसान का पूरा दिल काला हो और उसमें से जरा सी भी रोशनी हो ना, जरा सी भी हिदायत की, कि वो चाह रहा हो हिदायत की तरफ वापस आए, उसका चाहना भी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वापस हिदायत दे सकते हैं और देते भी हैं।
अच्छा, मेरा ये पॉइंट है कि हम दुनिया में जो भी करते हैं ना काम, हमारे इस कब्र में जाने के बाद जब तक आखिरत नहीं आएगी, उसका हमें सवाब में गुना मिलता रहेगा। जैसे ये हाबील को हाबील ने मारा था, हाबील को काबील ने मारा था, काबिल को हाबिल ने मारा। सॉरी, हाँ, काबील को हाबील ने मारा है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। काबिल को हाबिल ने मारा। अभी हाँ। अभी को नहीं का बीवी को मारा। काबिल ने हबील को मारा। हाँ जी, काबील काबिल ने हबील को मारा था। काबील ने हाबील को मारा था, और काबील को अब रहती दुनिया तक, जब तक आखिरत नहीं आ जाएगी, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी, जितने भी लोग दुनिया में कत्ल होंगे, उसका उन सब का गुनाह उसको मिलेगा जिसने ये काम शुरू किया था। किसने किया था? काबील ने। इसी तरह हम भी कोई ऐसा काम जो हमारे मरने के बाद भी वो काम दुनिया में होता रहेगा, क्योंकि जब इंसान मरता है ना तो उसके आमाल खत्म हो जाते हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट में माफी। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि हम ना कोई ऐसी बुक लिखें जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इटसेल्फ कुरान हो गया, या फिर अहादीस हो गई। अगर हम किसी ऐसी अहादीस को आगे पहुंचाते हैं जो कि मन गढ़ंत वो होती है ना हदीस, जो Fake मतलब होती है। हाँ जी, जो फेक होती है, जो सही नहीं होती, तो उसका भी हमें गुनाह मिलता है। जी, आपका कोई पॉइंट था आपकी? और किसी का कोई पॉइंट है, क्वेश्चन वगैरह? जब तक बात क्लियर ना हो, वो आपने ना आगे पहुंचानी है। सिर्फ बात ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे काम। किसी ऐसे अच्छे इंसान को भी नहीं मारना, उसका भी गुनाह मिलेगा, हमें भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा जिसने पहले शुरुआत की थी कत्ल करने की। तो ये हमारा सारा कुछ था। अब वो हम लोग नेक्स्ट अपने सेशन में ना हीथ अलैहिस्सलाम की तरफ जाएंगे और उनकी कौम के बारे में देखेंगे, और ये देखेंगे कि बुराई में अभी तक क्या क्या इंट्रोड्यूस हो चुका था, क्योंकि वो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम और काबिल को अलग हुए हुए अब मेरा ख्याल है बहुत अरसा हो चुका होता है। मतलब जो हमारी स्टोरी है उसमें वो तो अब बहुत पहले गुजर गया है वो तो पास, लेकिन शीश अलैहिस्सलाम फिर जब आते हैं मेरा ख्याल है उस वक्त तक इनोवेशन हो जाती है ईमेल के अंदर ना बहुत सारी चीजें। तो वो मैं आपको ना ऑथेंटिकेट करके दूंगा कि शायद से उस वक्त तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बन भी जाते हैं और म्यूजिक डांसेस भी शुरू हो जाते हैं, इस तरीके की भी कुछ चीजें होती हैं, फिर उससे और गलत काम होते हैं। हाँ जी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगले सेशन में। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, वरना मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूँगा जो अभी अभी ये जो उसने बात की ना कि उसका जो कहता जो उसने कत्ल किया था, तो जी। उसके बाद जितने भी कत्ल हो रहे हैं उसका उसके जा रहा है उसको जी। इस पे मैं बच्चों को बस एक आसान बात में ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह इन्वेस्टमेंट होती है ना, आपको पता है इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो चीज जो है वो ज्यादा होती है। इसी तरह आप किसी को कोई इल्म की बात या कोई अच्छी बात या किसी के साथ कोई सदका करते हो, किसी को गुड थिंग बताते हो, तो उसको वो आगे किसी और को बताता है और वो आगे किसी और को बताता है, जितने लोगों तक वो बात पहुंचे कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो इंसान कोई बहुत ही हो जाता है ना, लेकिन क़यामत तक वो उसके रजिस्टर में ऐड होती है। इसी तरह अगर आप किसी को ईवल किसी को सिखाओगे, खुद भी अगर ईवल हो उसको भी ईवल दिखाओगे, किसी को बुरी चीज बताओगे, तो वो अगर अपने किसी और दोस्त को बताएगा, जितने लोग उसको करेंगे वो आपके जो गुनाह में इजाफा होता जाएगा। हाँ उसमें इजाफा होता है। ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट इन गुड करनी है और ईवल करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत हो गया हूँ तो उसके बाद मेरा काम खत्म हो। आपने जो सबका जारिया और गुनाह जारिया छोड़ते गए हैं ना, वो आपके एडिशन हो रहा है क़यामत तक। जी, तो अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आ जाता हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, आप आंसर देंगे ताकि मैं देख सकूँ किस किस को सारा कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि जन्नत से निकालने के बाद क्या हुआ जब वो दुनिया में आए थे, मतलब आदम से? जी, जन्नत में आए थे। ठीक है, अब मैं किसी ऐसे से पूछना चाहूंगा जिसने अभी तक कोई सवाल का जवाब ना दिया हो। आप दे दें अगर आपको बताना। कोई चीज आप दे दें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद और घर बनाने के बाद क्या किया? सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था? ये हाँ, ये मतलब यही कि उनकी ना बहुत सारी बच्चे पैदा हो गए जिससे फिर इंसानों की नस्ल हुई थी, आगे बढ़ी वो
जो बूढ़ी नस्ल थी वो सारी दुनिया में जो वो करते हैं उनको भी ना जा रहा होगा जो हाँ जी, और जो अच्छे लोग हैं अभी भी वो मतलब वो दूसरी अच्छी दुनिया में दुनिया फैल से गए। चुप मान जाए। हाँ जी, तो ये सारी चीजें। और थिन लाइन और गुड लाइन में क्या फर्क है इन इविल एंड गुड थिन लाइन की? आप बता सकते हैं जी? अब जो अच्छी लाइन है ये फर्क है कि वो इसमें इस लाइन के कटोरे होता था और वो जो गुड लाइन है नहीं इवन ये और जो अच्छी लाइन है और डिफरेंसेस बताएं और वो ध्यान से हाँ जी एक तरीके से। बस तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ये सारी चीजें जो भी मैंने आप लोगों को बतानी थी अगले सेशन में हम लोग ठीक से लेकर और इविल फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये कि उन्होंने ठीक से सलाम के दौर में क्या क्या इन्वेंट किया था और काफी जो गलत हो गया था तो उसकी नस्ल कैसे आगे बढ़ी थी वो भी तो मतलब अपने हमसफर तलाश करता है ना फिर पूरी दुनिया में जगह थी तो उसके साथ से क्या हुआ और उसके अलावा ये है कि उसका ठिकाना किधर था फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो जगह थी वो किधर थी वो किधर रहा करते थे इस तरीके की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में और शीशा अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी वगैरह और ये कि उनके दौर में क्या था वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर आई होप सो यू अंडरस्टूड सो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं रैप अप करता हूँ कोई क्वेश्चन है ओके तो फिर मैं रैप अप करता हूँ डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर जज़ाकल्लाह खैरन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू